Question number 7. This question is from coordinate geometry. The coordinates of 2 points A and B are 1, 3 and 9 minus 1 respectively, and D is the midpoint of AB. D is the midpoint of AB. A point C has coordinate xy, where x and y are variables. State the coordinates of D. Clearly, D is the midpoint of AB. A और B के coordinates दिए हुए, just we will apply the formula of midpoint to find the coordinates of D. Let this point is A, this point is B, let this is the midpoint, that is represented by D. This point is D. और coordinates 1 3, A के coordinate 1 3 और B के coordinates 9 minus 1. We are using midpoint formula x1 plus x2 over 2, y1 plus y2 over 2. This is x1 y1 or this is x1 y x2 y2. We are using midpoint formula. So we get D is equal to 1 plus 9 over 2 or 3 minus 1 over 2. We get D is equal to D coordinates are 5 1. Now it is given that CD square is equal to 20. Write down an equation relating x and y. X y coordinates हैं C के, C point के coordinates हैं x y. So we have to show that CD square is equal to 20. C के coordinates हमारे पास हैं x y. D के coordinates हैं हमारे पास 5 1. We have to show that CD square is equal to it is given that CD square is equal to 20. Write down an equation relating x and y. हमने x y में एक equation find करनी using this relation. CD square is equal to 20. पहले हम CD find करेंगे C distance formula से x minus 5 whole square plus y minus 1 whole square whole under root. This is CD और स्केयर भी है इज इक्वल टू 20. स्केयर जो है स्केयर रूट से ये रिमूव हो जाता है, तो सो वी गेट x माइनस 5 स्केयर प्लस y माइनस 1 स्केयर इज इक्वल टू 20. ये हमने शो कर दिया है. ये सॉरी ये एक इक्वेशन आई है हमारी x और y में यूजिंग दिस रिलेशन सी डी स्केयर इज इक्वल टू 20. उससे हमारे पास ये x और y में एक इक्वेशन आ गई है. Part third of this question is, it is given that AC and BC are equal in length. Find an equation relating xy and show that it can be simplified to y is equal to 2x minus 9. AC is equal to BC. Now we will use distance formula. A, B, C की coordinates हमारे पास हैं. AC is equal to BC. It is given. AC is equal to ये देखें A के कोऑर्डिनेट 1 3 है, C के कोऑर्डिनेट x y हैं, तो सो AC will be x by using distance formula x minus 1 whole square plus y minus 3 whole square whole under root. और BC हमारे पास है डिस्टेंस फार्मूला से B और C के कोऑर्डिनेट गिवन है. B के कोऑर्डिनेट और C के कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं.
तो BC is x minus 9 whole square plus y plus 1 whole square whole under root. Taking square each side, ये अंडर रूट साइन जो है ये फिनिश हो जाएगा व्हेन वी आर टेकिंग स्क्वायर ईच साइड x minus 1 whole square plus y minus 3 whole square is equal to x minus 9 square plus y plus 1 square. Now we are using identities to expand these. So we get x minus 1 square, x square minus 2x plus 1 plus y square plus 9 minus 6y is equal to x square plus 81 minus 18x plus y square plus 1 plus 2y. फ्रॉम बोथ साइड्स ये कुछ टर्म्स जो है कैंसिल आउट हो जाती हैं, x स्क्वायर कैंसिल आउट, y स्क्वायर भी कैंसिल आउट और 1 भी कैंसिल हो जाता है, तो वी गेट माइनस 2x अब इसको लेफ्ट साइड को हम इस तरह कर लेते हैं 9 प्लस 1 10 माइनस 2x माइनस 6y सिंपलीफाई राइट को भी ऐसे कर लेते हैं माइनस 2x माइनस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस 18x प्लस 2y प्लस 82 फर्दर माइनस 2x y वाली टर्म्स को हम एक साइड पे ले जाते हैं माइनस 2x प्लस 10 प्लस 18x माइनस 82 इज इक्वल टू 6y प्लस 2y. हमने y वाली टर्म्स को एक साइड पे ले लिया और x वाली और टर्म्स और कांस्टेंट को लेफ्ट पे ले लिया, इधर लेफ्ट पे ले लिया ताकि हम ये रिलेशन शो कर सकते हैं y इज इक्वल टू x माइनस 9. So from here, after simplifying, we get 16x minus 72 is equal to 8y. Dividing by 8 both sides, we get y is equal to 2x minus 9. ये रिलेशन शो हो गया है y is equal to 2x minus 9. Next part of this question is using the results from part second and third and showing all necessary working, find possible coordinates of C. Now we have two equations. एक इक्वेशन हमारे पास ये है x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 और दूसरी इक्वेशन अभी हमने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ये फाइंड कर ली है. तो इन दोनों में वेरिएबल एक्स वाई आ रहे हैं, हम साइमल्टेनियसली इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई फाइंड कर सकते हैं. दैट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी. वी हैव टू इक्वेशंस. एक इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 5, ये सर्कल की इक्वेशन है एक्चुअली. This equation is of circle with center 5 1 and radius under root 20. तो लाइन की इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू अभी फाइंड किए y इज इक्वल टू 2x माइनस 9. इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा एक लाइन का और एक सर्कल के, दो पॉइंट्स आएंगे. तो ये सर्कल और लाइन की इक्वेशन को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. y की वैल्यू 2x माइनस 9 जो है यहाँ पे पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं इसको. तो वी गेट x माइनस 5 स्क्वायर प्लस
अब इस y की जगह पे 2x-9 पुट करेंगे। अब ये एक इक्वेशन आ गई है प्योर x में, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट टू वैल्यूज ऑफ x। सिंप्लीफाइंग x-5 square plus 2x-10 whole square is equal to 20, expanding x square plus 25 minus 10x plus 4x square plus 100 minus 40x माइनस 20। इस 20 को भी हम राइट पे, जो 20 है इसको भी हमने लेफ्ट पे ले लिया है, इज इक्वल टू 0। अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाइड, वी गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 105 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है हमारे पास। ऑल द टर्म्स आर multiple of 5, so we can divide each side by 5, so we get x square minus 10x plus 21 is equal to 0. From here we can factorize x square minus 7x minus 3x plus 21 is equal to 0. So we get x minus 7 into x minus 3 is equal to 0. We get two values of x. X is equal to 7 and x is equal to 3. अब हमने y भी फाइंड करना है, तो इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 2x माइनस 9 में x की वैल्यूज पुट करेंगे तो वी गेट टू वैल्यूज ऑफ y। x इज इक्वल टू 7 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 2x माइनस 9, x की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो ये y की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी 5। तो ये c के कोऑर्डिनेट आ गए 7, 5, और यहाँ से भी एक y की वैल्यू आ जाएगी। x इक्वल टू 7 पुट करेंगे इस लाइन की इक्वेशन में, वी गेट y इज इक्वल टू -3। तो एक और पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं c के, तो ये आ जाएगा 3 - 3। दीज आर टू पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ c। 7, 5 भी हो सकते हैं और 3 - 3 भी हो सकते हैं। एक्चुअली ये दोनों पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल हैं। दीज आर द आंसर्स।